Hello everyone, welcome to Dr. MDS Academy. Our last chapter in Strength of Material is Theories of Failure. Okay. So different theories we are having to design any part. Okay. First theory is Rankine theory, okay, which is also known as maximum principal stress theory. Second is our Guest theory, also known as Presa theory. Next comes is our Hex theory, strain energy theory, given as this expression. Okay, when all sigma 1, sigma 2, sigma 3 are the principal stresses. Okay, next is our distortion energy theory. So, this is the expressions of distortion energy theory. Okay, given in terms of LD stress. And next is our ST Venant theory, which is also known as maximum principal strain theory. So comparing all those theories, we are having a comparison diagram here. Okay, you can look and compare how for the different cases different theories are given. Okay, so इस क्वेश्चन के बेसिस इस चैप्टर के बेसिस पे we will be solving some previous year questions. Okay. First question in is asked in gate 1 marks. In a metal forming operation, when the material has just started yielding, the principal stresses are sigma 1, sigma 2, sigma 3 is 0. Following one Massey criteria, the yielding stress is क्या होगा yielding stress? देखो वन मेसी थ्योरी क्या बोलता है, which is also known as what? Which is also known as shear strain energy theory or distortion energy theory. Okay, this von Massey theory is also known as. Okay, when you look over here, see here von Massey. Okay, which is also known as distortion energy theory. Okay, and shear strain energy theory given as this expression. Okay, you have to memorize this derived formula. Okay, so applying this formula here, what we are having sigma 1 minus sigma 2, okay, whole square plus sigma 2 minus sigma 3 whole square plus sigma 1 minus sigma 3 whole square, okay, is equal to twice of sigma y square. This is the expression for the one Massey criteria. Okay, you have to memorize this. So most of the expressions which we will find in this theory of failure is you have to memorize those. Okay, so what are sigma 1, sigma 2, sigma 3? These are the principal stresses. Okay, so sigma 1 given is 180 plus 180, sigma 2 given is minus 100. Okay, sigma 1 is 180, sigma 2 given is minus 100, sigma 3 given is 0, all in MPa, megapascal. So minus minus plus na 100, this square plus sigma 2 minus 100, sigma 3 is 0 whole square plus sigma 1 is 180 minus sigma 3 is how much 0 whole square is equal to twice of एल्ड का स्क्वायर. ठीक है, ये पूछा है मेरे से. क्या आ गया 280 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर. ओके, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा वाई का स्क्वायर. ओके, सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, जस्ट ओपन कैलकुलेटर. 280 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर, ओके, इक्वल
क्या है 280 का स्क्वायर, 280 स्क्वायर, ओके, प्लस 100 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर, ओके। तो हाउ मच कमिंग, ओके, डिवाइडेड बाय 2, ओके, रूट ऑफ दिस ना सिग्मा वाई, so to the root of answer, root of answer, so this will come this, क्या आया 245.76, 245.76, ये आ रहा है ना 245.76, ठीक है। MPa आएगा क्या, यानी कि स्टैंडर्ड में ही है ना, सभी MPa में ही था, MPa है ना, तो आंसर विल बी इन व्हाट, MPa, इसमें MPa में आया, ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट 245.76 MPa, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट, सेकंड क्वेश्चन ऑफ गेट, ओके, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, एट ए पॉइंट इन ए क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए मशीन कंपोनेंट, ओके, ये कोई मशीन कंपोनेंट है मेरा, है ना, जो 3D में है ना, इसके अंदर में एक पॉइंट है, ओके, इसके इनसाइड में बॉडी में, इसका ये पूरा का पूरा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इस पॉइंट का स्ट्रेस वैल्यू, प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू दे रखा है ना, मशीन कंपोनेंट ये हो गया। फॉर द मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट द टेंसाइल एल्ड स्ट्रेस दे रखा है सिग्मा वाई गिवन इज 200 MPa, है ना, इस मटेरियल का सिग्मा वाई दे रखा है दिस मच, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज इक्वल टू मैक्सिमम सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ओके, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 का मॉड, ओके, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 का मॉड, मॉड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एक बचा है डिवाइडेड बाई 2 मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा वाई रिलेशन, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, ऐसे होता है फॉर्मूला। अब देखो क्या क्या दे रखा है, मैक्सिमम सिग्मा मैक्स का जरूरत नहीं है, यहाँ पर हटाओ, यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 कितना दे रखा है, सिग्मा 1 गिवन इज 60, 60 माइनस सिग्मा 2 कितना दे रखा है 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 मॉड, सिग्मा 2 कितना दे रखा है 5, सिग्मा 3 कितना दे रखा है -4, 40, तो 5 माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 मॉड, है ना, ये माइनस था ना तो माइनस वाज प्लस सिग्मा 3। Now next is sigma 1 given is 60. Sigma 3 is minus sigma 3, minus 1 is plus 40. Plus 40 divided by 2. Okay, bracket close is equal to sigma y दे रखा है क्या 200 MPa, 200 MPa अपॉन ट्वाइस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि पूछा है ना। अब देखो मैक्सिमम ऑफ 60 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 60 माइनस 5 divided by 2, 27.5, 27.5 है ना, 45
डिवाइडेड बाई 2, मतलब पॉजिटिव में ही आएगा ये, ऐसे भी आ रहा पॉजिटिव, तो निगेटिव में सपोज -27.5 आ रहा है निगेटिव, है ना, तो यहाँ पर हमें +25.5 रखेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड हियर इन ऑल थ्री केसेस। 45 डिवाइडेड बाई 2, 45 divided by 2, we are getting 22.5, 22.5, again here ये मॉड है ना, ये कितना आ रहा है 60 + 40 100 डिवाइडेड बाई 2 50, है ना, इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। अब देखो आउट ऑफ 27.5 पॉजिटिव में ही है, ये भी पॉजिटिव में ही है, ये भी पॉजिटिव में ही है ना, इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। नेक्स्ट देखो इस मैक्स का मतलब क्या हुआ, इस मैक्स का मतलब मीन्स दैट वी हैव टू चूज वन मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ थ्री, दिस वन सेकेंड थ्री, out of these three 27.5 22.5 and 50, which is maximum, 50 is maximum, so we will take only maximum single value 200 divided by 2 factor of safety, so after calculation 100, ठीक है, ये कट गया 2, so we will be getting factor of safety equal to 2, है ना, so answer will be what, answer will be our 2, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। So in this way, using the maximum stress theory, you can calculate the factor of safety. Okay, but you will have to remember these expressions. Okay, this expression. Okay, otherwise not possible to solve this question. Now, moving to our next question. Third question of GATE. Okay, 2016, 2 marks. Okay. The principal stresses at a point inside a solid object are sigma 1 given is 100 MPa, sigma 2 given is 100 MPa, sigma 3 given is 0 MPa. The yield strength of the material is 200 MPa. Sigma y का वैल्यू दे रखा है yield, okay, 200 MPa. The factor of safety calculating using the tracer maximum shear stress theory is इतना। अभी देखो मैं क्या पढ़ा था जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, ट्रेसा के लिए या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना, इसी को ट्रेसा ये बोलते हैं, ट्रेसा थ्योरी भी बोलते हैं। क्या होता है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस तो दे रखा है ना यहाँ पर, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 का मॉड, अभी जस्ट किया था सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 का मॉड, है ना, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 का मॉड, ओके, इसमें से आउट ऑफ 3 मैक्सिमम वैल्यू वी विल पिक, ओके, सिग्मा वाई, ओके, अपॉन 2 ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके, ये था मेरे पास किसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का फॉर्मूला, ओके। इस केस में इसका क्या है, एनटी दे रखा है, मतलब इफ इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो मैं इसको यहाँ पर सीधे यहाँ पर टी कर देता हूँ, है ना, बिकॉज इट इज गिवन हियर। एंड दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग कैलकुलेटिंग द वॉन मेसी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इज इतना। एक नेक्स्ट है, एक और थ्योरी दे रखा है, ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरी है, अनदर थ्योरी क्या बोलता है, वॉन मेसी
इसी को बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, ठीक है, थ्योरी। इसका क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा वन फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? ये यहाँ पर है ना, वन में सी था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, ये था ना वन में सी, दिस वन, वन में सी क्या लगाए थे? ये वाला फॉर्मूला लगाए थे, है ना, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, ये वाला एंड दिस फॉर्मूला वी आर टेकन, है ना, ये वाला। चलो तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या था? सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, सिग्मा टू, ओके, होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा वाई का स्क्वायर, ये था, है ना। अब देखो इसका इसका वन में सी का दे रखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज एन वी, ओके, वन में सी का। तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड ये होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड, ठीक है। मॉडिफाइड कैसे करेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालना है, इसमें तो ऑलरेडी डाला हुआ था, है ना, सिग्मा वाई अपॉन ट्वाइस ऑफ, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या होता था फॉर्मूला स्टैंडर्ड? ट्वाइस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, फॉर्मूला में दे रखा था ट्वाइस ऑफ रेशा का था ना, टी दे रखा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ए फोर एस की जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह ये सिंबल डाला, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हमें वेनोसी का ये होता है ना, ये होता है। यहाँ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, तो मोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर डालना पड़ेगा, एल्ड के नीचे डालना पड़ेगा, है ना, जैसे इसमें डाले हैं। क्या हो गया मॉडिफाइड फॉर्म? सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर, ओके, प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ सिग्मा वाई अपॉन इसका कितना दे रखा है? v दे रखा है, वन में सी ना v, है ना। सेकंड वाले केस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन इज दिस, ओके, एक के लिए तो ये दे रखा है, दूसरा के लिए ये दे रखा है ना, तो हमें दोनों के लिए देखना होगा, ये हो गया, है ना, लेकिन इसका होल स्क्वायर होगा, है ना। ऐसे नहीं करना है, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, हमेशा स्ट्रेस के नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, और क्या होता है हम लोगों का? एक होता है प्रूफ स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, है ना। तो ये हमेशा स्क्वायर के नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होती, ये स्टैंडर्ड हम लोगों का मशीन डिजाइन में एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, द सेम एक्सप्रेशन आई हैव यूज्ड हियर, ओके। चलो नाउ all the values we will putting now, okay, in one, from one, ठीक है, फ्रॉम वन मतलब ये वाला वन और ये टू, ठीक है, क्या आ गया? मैक्सिमम ऑफ, है ना, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई टू, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई टू मॉड। दूसरा सिग्मा टू इज गिवन इज 100, 100 माइनस सिग्मा थ्री इज 0, तो 100 माइनस 0 टू सेकेंड इज 0 माइनस 100 डिवाइडेड बाई टू, ओके, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सिग्मा वाई, सिग्मा वाई दे रखा है क्या? दे रखा है, तो वैल्यू वी विल पुटिंग डायरेक्ट, ठीक है।
200 दे रखा है, दिस वन कीजिए ना ऐड, सिग्मा वाई 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, कितना है इसको सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम ऑफ, ओके देखो ये जीरो हो गया, जीरो का मॉड प्लस 50 का मॉड प्लस माइनस 50 का मॉड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें देखो मैक्सिमम ऑफ 0 50, ठीक है, पॉजिटिव 50 निकला, इसमें से माइनस 50 मॉड में है तो मॉड का नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई दिस वन। ठीक है, नाउ out of these three terms 0 50 50 which one is maximum, 50 is maximum, pick any single value 50, वो ये भी एक ले लेते हैं, या ले लो ये ले लो, is equal to 100 divided by t, कितना आया, we are getting this, okay, तो फैक्टर ऑफ ये कितना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द केस वन के लिए, कौन सा केस वन के लिए, फॉर दिस केस, ये सेकंड केस हो गया, है ना। अब सेकंड केस के लिए द सेम फॉर्मूला एंड वैल्यूज विल बी पुटिंग, ओके, फ्रॉम ए टू, ठीक है, क्या आ गया, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर, सिग्मा वन कितना है 100, तो 100 माइनस 100 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस सिग्मा वन 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू इज 100 माइनस सिग्मा थ्री इज 0, दिस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा वाई का स्क्वायर, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम लोग, ये वाला दिस वन, दिस एक्सप्रेशन विल बी यूजिंग, ठीक है, ये तीनों हो गया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा वाई कितना दे रखा है एल डिस्टेंस 200 गिवन दिया, तो इस फॉर्मूला में डालते हैं 200, 200 डिवाइडेड बाई ये नहीं मालूम दे रखा है स्क्वायर, ठीक है, क्या आया, 0 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 200 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर, है ना, क्या आ रहा है 2 इंटू 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई स्क्वायर, ये से ये गया, कितना आया 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन में सी का, कितना आ रहा है 100 इक्वल टू 200 स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये कितना आ रहा है, ये से ये गया, है ना, कितना आ रहा है ट्वाइस, है ना, तो ये सेकेंड केस टू के लिए है, ठीक है, तो क्या आ रहा है फ्रॉम केस वन एंड टू, फ्रॉम केस वन एंड टू व्हाट वी आर गेटिंग, P is equal to factor of safety V का, दोनों दो है, टू टू है, दिस इक्वल टू टू, दिस इक्वल टू टू, तो बोथ आर इक्वल ना, तो केस वन एंड टू, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ट्रेसा से यदि फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री इस प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए, और एल्डर स्ट्रेस जब ये दे रखा है, इन बोथ द केसेस वी आर फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टीज आर सेम, okay, so what will be our answer, and our answer will be C here, this one, okay, clear, the answer will be C, so both the factor of safeties are equal in both the cases, both the theory cases, either one में C लो या मैक्सिमम या ट्रेसा थ्योरी ले लो, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा है इन 2000, ठीक, इस सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट is subjected to a bending moment of 400 kilonewton meter and twisting moment is 300
किलो न्यूटन मीटर ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ओके, द डायरेक्ट स्ट्रेस इज सिग्मा एंड according to maximum shear stress theory the shear stress is इतना, ये रेशियो पूछा है क्या होगा। देखो m का वैल्यू गिवन ना, गिवन ईयर ना, m value given in is 400 kilo newton meter and t twisting moment given is this t given is 300 kilo newton meter। देखो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे क्या, 1/2 m प्लस रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आता है प्रिंसिपल स्ट्रेस चैप्टर से। ओके, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग, ओके, ये क्या आता है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना। वैल्यूज पुट करेंगे, व्हाट विल बी गेटिंग 1/2 m 400 प्लस रूट m स्क्वायर का प्लस टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर 300 का, है ना। क्या आ रहा है, 1/2 400 4 400 का स्क्वायर 300 500 आएगा। ये कितना आ रहा है, 900 डिवाइडेड बाई 2 450, क्या आ रहा है MPa, है ना। ये कितना आ रहा है, रूट 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, तो रूट 500 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 500, है ना। MPa, ये नहीं, यूनिट विल बी मोमेंट, है ना, किलो न्यूटन मीटर, ये भी आएगा किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो ये आ गया, क्या क्या आया मेरे पास, एबी का वैल्यू आ गया 450 ना, किलो न्यूटन मीटर, टीई का वैल्यू आ रहा है 500 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 450। अब बोल रहा है सिग्मा और शियर कैसे निकालेंगे। देखो बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला, सिग्मा निकालने के लिए और शियर निकालने के लिए क्या है, क्या पढ़े हम लोग। देखो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, पढ़े हैं। शाफ्ट टॉर्शन के केस में शियर स्ट्रेस अपॉन आर पी अपॉन जे, ये है। इसका सिग्मा अपॉन शियर का रेशियो पूछा है मेरे को क्वेश्चन, है ना। यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई, शियर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इंटू आर, है ना। थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। सिम्स क्वेश्चन इज फॉर द सॉलिड शाफ्ट, सपोज डी डायमीटर है सॉलिड का, वहां पर हम लोग पोलर मोमेंट वगैरह निकालेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू एम, एम कितना दे रखा है, निकाला 450, 450 अपॉन आई, आई का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 64 टी टू द पावर 4, सॉलिड के, सॉलिड सर्कुलर के लिए क्या होता है आई का वैल्यू एक्स एक्स, आई एक्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 64 टी टू द पावर 4 इंटू वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से लेकर मैक्सिमम वैल्यू, ये कितना डी बाई 2 होगा ना, डी डायमीटर का शाफ्ट है तो डी बाई 2, है ना। अब आता है यहाँ पे शियर, पी कितना है, निकाला 500, 500 डिवाइडेड बाई जे कितना होता है, आई जेड, जेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं जे, और ये जे बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर। ओके, तो जे इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमेट्री है ना। एक शाफ्ट है मेरे पास, ओके, ये इसका एक्सिस है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना।
इसका ये व्यू देखेंगे तो ये आएगा डायग्राम। तो आई एक्स बराबर आई वाई वाई होगा क्या, सिमेट्री। तो ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स है क्या, 5/64 d⁴ है ना। तो फर्दर क्या आ रहा है, 5/32 d⁴. So this is our J. So same thing I will write here, 5/32 d⁴ into what is radius, shaft का radius d/2, d/2। ये मेरा इक्वेशन 1 है और दिस इज आवर इक्वेशन 2। रेशियो पूछा है सिग्मा अपॉन सीआर का, है ना। तो क्या आएगा 450 ओके इंटू d/2 अपॉन 5/64 d⁴ इंटू 500 इंटू d/2 5/32 d⁴, है ना। तो मेरे पास क्या क्या कट रहा है, ये गया, है ना, d⁴ गया, है ना। आते हैं नेक्स्ट, 450 अपॉन 5/64, है ना, 5 ठीक है 450 डिवाइडेड बाई 5/64, 5/32 इंटू 500, ठीक है। कितना आ रहा है, पाई से पाई गया, ये से ये 2 गया, तो 450 इंटू 2 900 डिवाइडेड बाई 500, ये गया तो 9/5। फ्रैक्शन में पूछा है, फ्रैक्शन में है 9/5 है ना, यहाँ पर 9/5। okay, so this is the ratio, the answer is 9/5। okay, now next question, ये पूछा 996 का, पुराना है इंजीनियरिंग सर्विस का। ओके लेकिन इस क्वेश्चन में काफी सारा थ्योरी कवर होता है। ओके इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए शाफ्ट मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल is subjected to a combined bending and twisting moment, calculation based on which of the following failure theories would give the conservative value। कंजर्वेटिव मतलब कि लेस रिस्क वैल्यू। ओके मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो पहला थ्योरी क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, इसको रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं, थ्योरी भी बोलते हैं। ये किस मटेरियल के, रैंकाइन है ना, ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज, ठीक है, जैसे कि कास्ट आयरन, है ना। ग्राफ कैसा प्लॉट होता है इसका, ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2 हो गया स्ट्रेस, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है, स्क्वायर शेप का मिलता है। यहाँ क्या है, ब्रिटल मटेरियल है ना, तो अल्टीमेट स्ट्रेस यूज होता है। यहाँ पर क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना, दोनों पॉजिटिव होगा यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, है ना। सिग्मा अल्टीमेट, सिग्मा अल्टीमेट क्यों, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस हमें ब्रिटल मटेरियल के यूज में लाते हैं। इधर क्या हो गया, माइनस हो गया ना, तो ये वैल्यू क्या हो गया, माइनस सिग्मा 1, है ना, पॉजिटिव सिग्मा 2। तो इसको क्या करेंगे, सिग्मा 1 क्या है, ये सिंस इट इज स्क्वायर तो ऑल वैल्यूज विल बी इक्वल, तो माइनस सिग्मा अल्टीमेट, के सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा 2 भी अल्टीमेट है क्योंकि सारा बराबर होगा कोऑर्डिनेट, है ना। ये भी सिग्मा अल्टीमेट होगा एक्स एक्सिस पे, और ये भी सिग्मा वाई
होगा y एक्सिस पर, है ना। ये क्या होगा, सिग्मा 1 इज पॉजिटिव एंड सिग्मा 2 इज निगेटिव, है ना। व्हाट वी आर गेटिंग, सिग्मा प्लस सिग्मा अल्टीमेट, ओके, माइनस सिग्मा अल्टीमेट, ओके। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर आवर Rankine theory, okay. Now our next theory is maximum principal stress, maximum shear stress theory, shear stress theory, है ना। इसको shear stress gauge theory बोलते हैं, इसको ट्रेसा थ्योरी बोलते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, हमें शियर है ना, तो शियर हमेशा डक्टाइल के लिए यूज होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक। देखो यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। आउट ऑफ 3 जो भी मैक्सिमम होगा वी विल कंसीडर, यहाँ एल्ड होगा, ओके। यूनिट लेफ्ट साइड में सिग्मा का क्या है, न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पर भी न्यूटन पर मीटर, ये ट्वाइस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये इसका कैसे ग्राफ बनेगा, इसका ये मैं क्या किया था, रैंकाइन के लिए ये था, है ना। मैं इसको क्या करूंगा, ये लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा, है ना, ओके। दिस इज आवर व्हाट, दिस इज द फॉर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ओके, ग्राफ तरीके से। नाउ नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या है हम लोगों का, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसको बोलते हैं हेक्स थ्योरी भी, हेक्स थ्योरी भी बोलते हैं, प्लीज सी स्पेलिंग, ओके। हेक्स थ्योरी भी बोलते हैं, क्या होता है एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, लास्ट चैप्टर में भी हैव सीन, ओके। 1/2, इसको और क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ई, है ना। सिग्मा, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन ई लिख सकते हैं यहाँ से, ओके। 1/2 सिग्मा का स्क्वायर अपॉन ई लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 ई सिग्मा का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, Q एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ई, ओके। यदि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर गिवन, दिस वाज फॉर द यूनि एक्सिस एक्सियल, यानी कि सिर्फ सिग्मा दे रखा है एक डायरेक्शन के, इफ यू आर हैविंग sigma 1 sigma 2 sigma 3 means existing on all three axes, okay, three principal stresses we are having, then sigma 1 का स्क्वायर प्लस sigma 2 का स्क्वायर प्लस sigma 3 का स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ 2 न्यू, ठीक है, ओके। सिग्मा, हाँ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3, ओके। ये आता है हमें, ये स्ट्रेन आ गया, ठीक है। ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो ऊपर में कितना है, सिग्मा स्क्वायर, एल्ड के टर्म में एल्ड का स्क्वायर, दोनों साइड में
यूनिट बराबर करना है, अपॉन 2e का 2e रहेगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही रहेगा। ठीक है, तो इसको मेमोराइज करना है। 4, हाँ, यदि मेरे पास इफ 2d, ओके, या और सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 न्यू, ओके, न्यू इज व्हाट, पॉइजन रेशियो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3, ओके, इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर बराबर, ओके, इफ सिग्मा 3 इक्वल टू 0, दैट इज 2d केस, ओके, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 न्यू, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ओके, सिग्मा 3 0, इक्वल टू सिग्मा y का स्क्वायर, ठीक है, लाइक दिस। नाउ द फोर्थ वन इज, फोर्थ इसका कोई ग्राफ नहीं है। नाउ द फोर्थ वन इज, यहां शियर लगा दो, यहां पर शियर लगा दो, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी बोलते हैं, डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और क्या बोलते हैं, एस टी वेनन, सॉरी, वॉन मेसी थ्योरी भी बोलते हैं, मेसी थ्योरी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हैंकी थ्योरी बोलते हैं, हैंकी थ्योरी भी बोलते हैं, ओके, प्लीज सी स्पेलिंग, ओके, ये साइंटिस्ट के नेम है, ओके, तो इसमें क्या होगा, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसमें हम लोग सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab बचा, तो 2 सिग्मा वाई स्क्वायर, देखो लेफ्ट साइड में सिग्मा वाई स्क्वायर है, तो राइट साइड में भी सिग्मा वाई स्क्वायर होगा, यूनिट सेम, ठीक है, ट्वाइस होगा क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, यहाँ ट्वाइस करेंगे जैसे मेमोराइज करने के लिए, है ना, ये इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो, ये किसके लिए था, रैंकाइन के लिए था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फर्स्ट वाला केस के लिए, है ना, दूसरा वाला केस के लिए क्या था, ये था, है ना, दूसरा केस मतलब शियर स्ट्रेस के लिए, इसके लिए ये वाला था ना, ये वाला सेम, शियर स्ट्रेन एनर्जी के लिए क्या होगा, ये करके, हाँ, इसके लिए क्या होगा, डिस्टॉर्शन, देखो डी इस तरीके से है, तो डी बना दो, है ना, ये पॉइंट को टच करेगा, ये पॉइंट को टच करेगा, जितने कॉर्नर है सभी को टच करेगा, है ना, ये ये ऐसे टच करेगा, ये टच नहीं करेगा, ये इस तरह डी बनेगा, डिस्टॉर्शन गोल, ठीक है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी हो गया ये इसके लिए। एक लास्ट एक और आता है मेरे पास थ्योरी, कौन सा, मैक्सिमम केस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसी को बोलते हैं एस टी वेनन थ्योरी, है ना, एस टी वेनन थ्योरी, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है एस टी वेनन थ्योरी,
ये हम लोगों का ग्राफ हम लोगों का कुछ ऐसा बनता है। ये हम लोगों का रैंकाइन के लिए था पहला केस, है ना। ये क्या हो गया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, है ना। किसके लिए था, पहला केस के लिए, है ना। फर्स्ट केस मतलब कि ये वाला केस। दूसरा वाला क्या था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो दूसरा वाला ये हो गया, है ना, ये वाला हो गया। दिस इज आवर दूसरा केस, है ना। क्या था, मैक्सिमम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये सेकंड वाला केस। थर्ड वाला केस क्या था, ये कलर लो, ठीक है, येलो। थर्ड वाला केस था, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का तो था नहीं, मैक्सिमम और उसी का शियर स्ट्रेन थ्योरी या डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। क्या करते थे, डी सर्कल बनाते थे, सारे डॉट को ऐसे इलिप्स टाइप का कुछ बनता था, है ना। दिस इज आवर व्हाट, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन या स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। दिस इज द केस फोर्थ था, थर्ड का तो था नहीं यहाँ पर। दिस इज आवर फोर्थ, है ना, दिस इज आवर फोर्थ, दिस इज फोर्थ, है ना। नाउ अब आते हैं पांचवा पर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ग्रीन कलर, है ना। स्ट्रेन क्या होता है, एक डायगोनल लो, डायगोनल मतलब कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया, यहाँ पर एक, इस पहले वाला बोले तो इससे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का डायगोनल यूज करके रेक्टेंगल का, ये, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जितने डॉट्स है, यहाँ पर एक पॉइंट्स लो, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर में, और यहाँ पर एक पॉइंट्स लो रेक्टेंगल के अंदर में, और इन इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, कलर मैं ब्लैक लेता हूं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा, है ना। और यहाँ पर एक होगा, ऐसे जाएगा, ये कहाँ मैच किया था, यहाँ पर, है ना। तो ये ऐसे जाए, एक यहाँ आएगा, ऐसे ले जाओ, एक यहाँ पर मैच करेगा, ठीक है? इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। दिस इज आवर फाइव, है ना। तो सारे केस में प्लीज नोट दैट ऑल द केसेस आर मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, ठीक है। और यदि सीक्वेंशली ऑर्डर रिमेम्बर करना है इसे, तो कैसे करेंगे, पहले नॉर्मल आता है, उसके बाद सीयर आता है, ओके। बताता हूँ क्या फंडा है, याद करना, नॉर्मल, शेयर, फिर नॉर्मल,
shear, ओके, फिर नॉर्मल, है ना? इस तरीके से नॉर्मल शेयर नॉर्मल शेयर नॉर्मल। अब आते हैं वापस, जो मैं बताया था, क्या बताया था पहले, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल होगा ना, प्रिंसिपल नॉर्मल ही होता है ना, जहाँ शियर स्ट्रेस जीरो होता है, चैप्टर 2, है ना, नॉर्मल हुआ मतलब रैंकाइन साइकिल हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस, ओके। फिर शियर, शियर आ गया, है ना, मैक्सिमम शियर, और सारे केस में मैक्सिमम मैक्सिमम होगा, मैं हाईलाइटेड दिस मैक्सिमम मैक्सिमम। तो क्या पहला वाला नॉर्मल, फिर शियर, दूसरा वाला नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है, उसके बाद फिर शियर होगा, ओके, ये शियर, ये स्ट्रेन एनर्जी, और उसके आगे में शियर लगा दो। 3 के बाद 4 में शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एज इट इज था, है ना, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एज इट इज था, आगे शियर लगा दूंगा, तो ये नॉर्मल शियर, उसके बाद फिर नॉर्मल आएगा, दिस इज अगेन नॉर्मल, मीन्स प्रिंसिपल नॉर्मल ही होता है, okay? तो लाइक दिस यू कैन रिमेम्बर। क्वेश्चन था क्या, शाफ्ट मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल कहाँ यूज होता है, ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में यूज होता है, रैंकाइन में नहीं, ब्रिटल होता है ना। डक्टाइल कहाँ यूज होता है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यस डक्टाइल मटेरियल में यूज होता है, ठीक है, तो आंसर यहीं पर मिल गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी एक ही होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी एक ही होता है ना। So like this you can remember and give answer. So in this way almost all the chapters I have covered from the strength of material, okay. So if any doubt you are having, please let me know, okay. uh, you can give, ask from in the comment box, okay. Please try to share these videos with your friends and colleagues, okay, so that they will be benefited from such lectures, okay. So see the index, okay. So in a strength of material, soon these books are available, these books means all these 13 chapters, 13 subjects book, okay, online, okay, you can purchase that, I will notify you later on, okay. These are the contents I covered, all the contents I covered one by one, okay. You can go through each and every chapter, and some importance 8 questions engineering service exam question, and some other uh, questions asked in the PSUs, okay, I have solved, okay, and try to clarify those, okay, in detail, okay. And based on the these chapters I have prepared some animation videos also, you can go through those animation videos, and please share all those my YouTube channel with your friends, okay, ताकि उन्हें कुछ बेनिफिट मिले, ओके। सो थैंक यू ऑल, ओके। वी विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट with other subjects, okay. Next subject will be our heat and mass transfer, okay, which I am going to start very soon, okay. So thank you all, thank you.